And 5, 4, 3, 2, 1, boom. हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द साइबर कैफे। और आज के एपिसोड में हमारे साथ है चेतन बंसल। चेतन अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में अभी स्टूडेंट है, डिप्लोमा कर रहे हैं इन एजुकेशन आईटी में। उन उन्होंने की है एथिकल हैकर इंटर्नशिप एट हैकर्स डैडी एंड इज करंटली दी doing an internship at Key Cyber as a cyber crime investigator and researcher. Hello Yes, Chetan, welcome to the Cyber Cafe. कैसे हैं आप? I'm fine. What about you? आप कैसे? चेतन आपकी आवाज नहीं आ रही है। Now I'm audible. एक सेकंड, एक सेकंड है ना, अब ट्राई कीजिए। Hello, hello. हाँ अब आ रही है। Yeah, कुल हम यहाँ से रिज्यूम कर लेंगे। गो। कैसे हैं आप? I'm fine. What about you? I'm awesome Chetan. I'm really excited to have you as a guest on my podcast. And And again, like I read a lot about you on LinkedIn. आपने काफी कुछ कर रखा है and I really like that. Like अभी एज अ yeah, स्टूडेंट आपने बहुत सारी इंटर्नशिप्स कर रखी है, अब अभी काफी कुछ कर रहे हैं। So yes, sir. if anybody were to ask you to introduce yourself, who is Chetan Bansal? How would you introduce Yeah. yourself? Firstly, thank you for this opportunity to introduce myself. I'm Chetan Mansal, and I'm living in Delhi with my parents. About my skills, I have knowledge about some programming language, but mainly I focus about Python and Java. And I use different kind of operating system like Ubuntu 16 and 18, Linux Mint, Kali Linux, Parrot Security, Windows 7, Windows 8, Windows 10. Currently, I'm working with Windows 10 and Kali Linux. And and I have some knowledge about GitHub. And about my hobbies, I love teaching and learning something new and helping others. And I'm writing a blog in cybersecurity domain and learning something new relating cybersecurity and pending concept about my experience and internship. First, first internship in Hacker Daddy. This institute in Hyderabad. This provides a summer internship. Learn of new things like how to cooperate in real world, how to work with real world, and how to use some tools like Wireshark, OWASP, and some more tools. My second internship in VR Full Filmet as a content writer. I write some blog like IoT hardware uh, in part of internet like dark web and deep web and surface web. Now currently I am work with Key Cyber as a cyber investigation and researcher. About my journey and family. I have a small family with 4 members, including me, and currently I am pursuing diploma information security at the Ambedkar Institute and Technology. Now I'm second year student. This is about Wow, me. man, you've done so much stuff for a college kid. That's a lot of things you've done, man. Cool. Yes. तो आप आपकी बचपन से जर्नी कैसे रही अब तक? आपने आज आप बहुत सारे इंटर्नशिप्स कर रहे हैं। वे यू ऑलवेज लाइक दिस, या बचपन से कुछ काम करने में दिलचस्प लगता था? 11th 12th से आपका कैसा रहा सीन? मैं बचपन से ये था कि मैं अपने मतलब देश के लिए कुछ तो मतलब कुछ भी चाहे आर्मी हो या एज अ पुलिस वर्कर एज अ सीआईडी ऑफिसर तो पर आफ्टर नाइट आई एम interested cyber field and after that I am doing this diploma in information security and doing this whole thing. अच्छा, तो आपका मतलब बचपन से इंटरेस्ट था, साइबर लाइन ऑनवर्ड साइबर सिक्योरिटी में Yeah, इंटरेस्ट था? after ninth. अच्छा, After ninth. ओके। सो हाउ डिड यू गेट स्टार्टेड इन दैट? आपकी जर्नी कैसे शुरू हुई थी, आपको याद है कुछ? Yeah, I'm learning about IT, information technology, and I had a
I watched a video in YouTube, then came in video, एक वीडियो मिली मुझे जो थी आपकी पूरी साइबर सिक्योरिटी के ऊपर थी, और जब से मैं वहीं पे इंटरेस्ट आ गया कि हाँ अब करना है, ये करना है, सारी चीजें इसमें थी। और जब से फिर मैंने स्टार्ट कर दिया, फिर मैं स्टेज बाय स्टेज चलता है। पहले मतलब मैंने बेसिक सीखे, हैकिंग होती क्या रियल वर्ल्ड में, कैसे हैकिंग को बोलते हैं, वो सारी चीजें। और फिर मतलब मैंने फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखी, फिर मैंने नेटवर्किंग सीखी, और देन अब हैकिंग चालू कर दिया, फिर इंटर्नशिप करने लग क्या बात है, तो आपने सब पूरा यूट्यूब से सीखा है? गया। नो, मतलब समटाइम यूट्यूब एंड सम मेंटोर आल्सो टीच मी। सॉरी? सम सेशंस, मतलब कई सेशंस होते हैं ना फ्री ऑफ अच्छा, कॉस्ट, आपने, वहाँ से सीखा हाँ, है थोड़ा सा यूट्यूब और थोड़ा सा क्रैक कोर्स। तो मतलब आपने पूरा इंटरनेट पे बैठ के सीख लिया कोर्सेज के थ्रू? सही है। तो अगेन काफी, आजकल के काफी बच्चे एथिकल हैकर बनना चाहते हैं, सब एथिकल हैकिंग में घुसना चाहते हैं। तो अगर आप अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन कर सकते हैं कि व्हाट इज एन एथिकल हैकर एंड हाउ हैज योर एक्सपीरियंस बीन एज एन एथिकल हैकर इंटर्न एट हैकर्स डैडी, राइट? अगर आप हैकर्स डैडी पे इंटर्न एथिकल हैक करते हैं एंड अभी आप की साइबर में साइबर इन्वेस्टिगेशन में है। यस सर, यस। ओके, तो आपका हैकर डैडी का एक्सपीरियंस कैसा रहा? हैकर डैडी का एक्सपीरियंस होता है, उसमें हमें सिखाया गया था कि हाँ कैसे आपको वर्क करना है, कैसे आपको टूल्स यूज करना है, वो भी जितने भी टर्मिनल हो, जितनी वो सारी चीजें वहाँ पे सिखाई गई थी। और हमारे साथ जो हमें टीच कर रहे थे वहाँ पे वो थे महेश लकेजा सर, इज ऑल्सो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट, प्रोफेशनल एक्सपर्ट, एंड ही ही टीच ही टीच। अच्छा, तो मतलब वहाँ पे हायरिंग क्राइटेरिया कैसा था? हायरिंग में वो एक इंस्टीट्यूट था जो आपको मतलब टीचिंग प्रोवाइड कराता था कि आप ये कर सकते हो। वहाँ पे कई सम कोर्सेज थे जैसे वेब डेवलपर है, पाइथन डेवलपर एंड सम हम्म। मोर कोर्सेज। दे प्रोवाइड अ समर इंटर्नशिप, समर ट्रेनिंग, लाइक समर ट्रेनिंग। अच्छा, तो आपने इसके लिए अप्लाई कैसे किया था? ऑनलाइन अप्लाई किया था व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए। अच्छा, व्हाट्सएप के जरिए आपने ये- अप्लाई कर लिया था। ये- चलिए, सही है। सो अगर आज मैं आपसे पूछूं कि एक एथिकल हैकर क्या होता है, कौन होता है, तो आप बता पाएंगे? या सिंपल है, एथिकल हैकर वो हैकर है जो आपकी कंपनी या आपके गवर्नमेंट के लिए आपकी हेल्प करता है, आपको सिक्योर करता है। जैसे कोई कंपनी है, अब उसे सिक्योरिटी की जरूरत है, चाहे उसे साइबर क्राइम जितने भी हो रहे अटैक हो रहे हैं उनसे बचना है, या अपनी सिक्योरिटी को हाई करना है, चाहे उनकी नेटवर्क की पावर हो या उनकी वेबसाइट की, वो सारी चीजें वो सिक्योर करता है एज एथिकल हैकर। एथिकल हैकर आपके पेन टेस्टर भी होते हैं जो आपकी वेबसाइट में वल्नरेबिलिटी या बग निकालते हैं, उन्हें फिर रिपोर्ट करते हैं, फिर उन्हें पैच करके पूरा बताते हैं सामने वाले को कि आपके वेबसाइट में या आपकी कंपनी में यहाँ पे ये लूप होल है, आपके नेटवर्क में ये लूप होल है, और आप कैसे उसे पैच कर सकते हो, मतलब कैसे उसे फेस कर सकते हो। अच्छा, ये तो काफी अच्छी डेफिनेशन थी। एज मच एज आई हैव रिसर्च अबाउट एथिकल हैकर, आई एम लीनिंग मोर टुवर्ड्स द ब्लू टीम तरफ। मैं थोड़ा फायरवॉल्स एंड नेटवर्किंग में की तरफ ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ, बट जितना मैंने रिसर्च किया, आई मीन आई रियली लाइक हाउ यू मेड अ डेफिनेशन। दैट्स प्रीटी ऑसम मैन। तो आपने जब आप इंटर्नशिप कर रहे थे, आपने वहाँ पे कुछ स्पेशल एक्सपीरियंस किया था? आपने कोई स्पेशल एक्सपीरियंसेस थे आपके हैकर डैडी में? या हाँ, हमें जब टूल्स बताए थे तो वो ऐसे बताए थे बिल्कुल फ्रेंडली नेचर, कैसे आप उसे प्रोफेशनली यूज कर सकते हो। जैसे वायर साप हो गया, ओएस साप हो गया। ओएस साप ऑल्सो एक टूल्स है हमारा हैकिंग की कम्युनिटी में, बर्डसूट, जो आपका एक पूरा फ्रेमवर्क है। वो आपके उसमें दो वर्जन है, एक फ्री वर्जन है जिसे हम कम्युनिटी वर्जन बोलते हैं, एक आपका प्रोफेशनल जो आपका पेड है। पर वहीं पे आपका ओएस जो आप कह रहे हो वो पूरा फ्री है, वो ओएस वालों ने बनाया है वो पूरा, तो जिस वजह से उस पर वर्किंग करना भी इजी था आपका। ओएस आपका बेसिकली क्या है, ओपन सोर्स है पूरा, है ओपन एक्स
ओपन हो जाता है, जिसमें आपको ओएस की फुल फॉर्म है ओपन वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी प्रोजेक्ट, जो आपको प्रोवाइड का जो आपको कहीं से प्रोवाइड करती है, चाहे आपके सिक्योरिटी रिसर्च पेपर हो या वेब के रिलेटिव वल्नरेबिलिटी हो या एपीआई के रिलेटिव वल्नरेबिलिटी हो या एंड्रॉइड, तो उन्हीं का एक टूल था ओएस रैप। तो उसे यूज करना भी वहीं पर सिखाया गया था हमें, तो कैसे यूज करना है, कैसे वो यूजर फ्रेंडली है, और सारी चीजें जैसे आपका वायर सार्क हो गया, वो वायर सार्क आपका नेटवर्क पेन टेस्टिंग में आता है, नेटवर्क को मॉनिटर करने में उनके पैकेट को। तो वहाँ पे वो बताया गया था कैसे आप पैकेट को पढ़ सकते हो, कैसे आप उन्हें रीड कर सकते हो, मॉनिटर कर सकते हो। एक्सक्यूज मी। तो आपका फेवरेट टूल कौन सा था? मेरा अब तक का फेवरेट टूल स्कैनिंग में एनमैप और वेब में आपका वो है बर्डसूट। अच्छा। तो आप इंटर्नशिप में आप कितने घंटे काम कर रहे थे वहाँ पे? क्या? आपके आपका वर्क आवर्स कैसे थे वहाँ पे? वहाँ पे हमारा वर्क आवर्स नॉर्मल था, हमारा मतलब पर्टिकुलर वीकेंड हमारा ऑफ रहता था, और दिन में हमारे 1 घंटा या 2 घंटे की हमारी ट्रेनिंग होती थी वहाँ पे। अच्छा। हम्म। तो आपको ट्रेनिंग के बाद जब आप निकलते थे बाहर, आपको कैसा लगता था जब आपको कुछ सिखाते थे? हाउ डिड यू फील व्हेन यू लर्न समथिंग न्यू? अच्छा लगता था कि कुछ नॉलेज हमारी बिल्ड हुई है, कि हमें कुछ ना कुछ नया जानने को मिला। मतलब वहां से निकलने के बाद मुझे जब मेरी ट्रेनिंग खत्म हुई तो मेरे पे अच्छा खासा एक्सपीरियंस था, 3 मंथ का एक्सपीरियंस था, जिसमें मैंने काफी चीजें सीखी थी। चाहे वो आपको वाईफाई को सिक्योर करना हो, या वाईफाई को हैकिंग, जो भी हमारी चीज होती है, वेबसाइट में वल्नरेबिलिटी हो गई, ओआस के टॉप 10 जो है वेब में, वो सारी चीजें वहां पे हमने सीखी थी, कैसे हमें सिक्योर करना और कैसे हम उससे हैक भी कर सकते हैं। मतलब एज अ सिक्योरिटी पेन टेस्टिंग में आपको दोनों चीजें आनी चाहिए, कि हम्म। आप कैसे उस सामने वाले को हैक कर रहे हो, सामने वाले को कैसे डिफेंस कर रहे हो। तो सही, काफी बढ़िया हो गया। मतलब, लेकिन आप, लकीली आपने तो फिर भी नेटवर्किंग सीख रखी थी, तो आपको आई थिंक और ज्यादा आसान पड़ा होगा ना? यस सर, आई स्ट्रॉन्ग बेसिक। अब मैं बेसिक जो नेटवर्किंग है वो पहले से बहुत ज्यादा सही है। बढ़िया है। तो फिर उसके बाद आपने बीच में काफी सारा कंटेंट राइटिंग वगैरह में भी आप घुस गए थे। तो यस सर। आप सीधा साइबर सिक्योरिटी से कंटेंट क्रिएशन में घुस गए थे? नहीं नहीं um, नहीं, मतलब मैं दोनों को एक साथ लेके चल रहा था वहाँ पे, कि जो भी मैं सीख रहा था वो एज अ कंटेंट मैं प्रोवाइड कर रहा था औरों को, मतलब एज अ कम्युनिटी में प्रोवाइड कर रहा था। अच्छा। हम्म। ओके। तो अगर मैं आपसे अभी पूछूं, आपने अभी की साइबर पे अभी आप करंटली इंटर्नशिप कर रहे हैं। यस सर। तो आपका साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेटर है आप। यस। तो आपको वो इंटर्नशिप कैसे मिली? वो इंटर्नशिप मुझे इंस्टाग्राम के थ्रू मिली थी। वहाँ पे मतलब मैं मैम के पेज को फॉलो करता था, 30 आवर को, तो वहाँ पे इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी थी, तो मैंने अप्लाई किया, तो मैं विद इन 1 मंथ या 2 वीक अप्लाई हो गया, और वहाँ से मुझे मेल आ गई कि आप सिलेक्ट होते हो। तो वो फिर उन्होंने हमें टास्क दिया कि आप एक पॉडकास्ट बनाओ, अगर आपको पूरा सिलेक्ट होना है। तो पॉडकास्ट मेरी अच्छी थी। उसके बाद मैंने पॉडकास्ट बनाई थी पैकेज स्विचिंग के ऊपर, पैकेज हम्म। स्निपिंग जो थी। तो उसके बाद मैं सिलेक्ट हो गया था वहाँ पे इजीली। ये हमारी जनवरी में चालू हुई थी हमारी, तो ये हमारी सिक्स आपने मंथ इंटर्नशिप था। पैकेट स्निफिंग के ऊपर प्रोजेक्ट बनाया है? यस सर, तो पॉडकास्ट जो थी हमारी पैकेज स्विचिंग के ऊपर थी मेरी। अच्छा। सो क्या आप हमारी ऑडियंस को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि थोड़ा सा डिटेल में कि पैकेट स्निफिंग क्या होती पैकेज है? स्निपिंग, हाँ बिल्कुल। पैकेज स्निपिंग सिंपल है। सबसे पहले जो हमारे नेटवर्क पैकेट होते हैं वो होते गए, जो भी हमारा डाटा शेयर हो रहा है इंटरनेट पे, वो पैकेट के फॉर्म में हो रहा है। चाहे हम कुछ चीज डाउनलोड कर रहे हैं, चाहे हमारी कोई फाइल है 1 GB की है, तो वो हम पे एक साथ नहीं आएगी, वो एक छोटे छोटे पीस में आएगी, जिसे हम बोलते हैं नेटवर्क पैकेट। तो उन्हें हमें स्नीप करना होता है इन नेटवर्क स्नीपिंग। जैसे हम कई टूल्स यूज करते हैं, वायरसार्क हो गया, या आपका सोलो विन के टूल्स हो गए,
जो हमारे स्नीफिंग में हेल्प करते हैं। और ये बेसिकली आपके जो पैकेज स्नीफिंग होते हैं इनकी जॉब कैसे होती है, या तो आपकी गवर्नमेंट एजेंसी होती है वो देखती है, या आपके आईएसपी होते हैं जो आपको इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं, वो भी आपके पैकेज स्निफ करते हैं, क्योंकि उन्हें देखना होता है कि कोई बंदा कोई इनलीगल एक्टिविटी तो नहीं कर रहा इस वजह से। और आपकी कोई कंपनी है, कंपनी हायर इसलिए करती है कि आपकी एक कंपनी में जो पर्टिकुलर नेटवर्क है उसके बीच में कोई, आपके काम के बीच में कोई गलत इनलीगल एक्टिविटी या कुछ इनलीगल ओपन करके कोई देख तो नहीं रहा, या वेबसाइट के अंदर डिटेल में तो नहीं जा रहा। इस तरह से पैकेज स्निपिंग सबसे ज्यादा यूज होती है कि जो भी पैकेट आते हैं उन्हें स्निप करते हैं। ये आपके जो काम करते हैं इनकी जो जॉब होती है वो होती है नेटवर्क मॉनिटरिंग की, नेटवर्क मॉनिटर वाले जो होते हाँ, हैं वो करते हैं। सो बेसिकली आप 24 घंटे सर्वेलेंस करते रहते हैं कि भाई डेटा कौन सा हो रहा है। तो इट्स लाइक एक फायरवॉल का कॉपी बोल सकते हैं। हैं? फायरवॉल की कॉपी है मतलब एक लेवल पे। हाँ, फायरवॉल की कॉपी है। जैसे हम फायरवॉल में क्या होता है, हमारा सिक्योरिटी लगी रहती है, उससे आपको बाईपास करके, मतलब एज अ, मतलब बाईपास इन द सेंस उसमें से फिल्टर होके आपका पैकेट जाते हैं। पर यहाँ पे क्या मॉनिटर होते हैं, यहाँ पे मतलब कोई पैकेट है उससे सेरा नहीं जाएगा आपका स्निफिंग में, पर वो रीड किया जाएगा। अगर उसमें कोई भी इनलीगल एक्टिविटी लगती है तो उस पैकेट को वो देखेंगे कहाँ से आ रहा है, कौन से सोर्स से है और कौन से डेस्टिनेशन से। तो देन आपका साइबर इन्वेस्टिगेशन वहाँ पे पूरा काम करेगा कि उस बंदे को कैसे वहाँ पे पकड़ना है और कैसे वो पूरा एनालाइज होगा। वहाँ पे मॉनिटरिंग का काम बस यही होगा, फायरवॉल टाइप में ही होगा। बढ़िया है। काफी इंटेंस में होता है, मतलब लोग जनरली जब ऑनलाइन जाते हैं तो बस ये लिखते हैं कि हाउ टू बी एथिकल हैकर, ये 2-3 चीजें कर लो हो गए तुम बन गए एथिकल हैकर। नहीं नहीं नहीं, पैशन और डेडिकेशन दोनों चाहिए। अगर आप इस फील्ड में गए हो तो आपको पहले तो अपने दिमाग से निकालना पड़ेगा हैकिंग इजी है। जो मूवी में होते हैं वो बिल्कुल गलत है। मूवी में एक क्लिक पे आपका फोन हैक हो रहा है या वाईफाई हैक हो रहा है, वो ऐसा कुछ नहीं होता। लोग ज्यादातर इसी वजह से आते हैं मूवी की हैकिंग देख के फील्ड में, मैं जिससे मैं मतलब ऐसा कुछ। हैक करने में बहुत टाइम लगता है, मतलब कोई भी चीज है ऐसे क्या? चुटकी में हैक नहीं हो जाती है। अनलेस कोई, लेट्स से आई थिंक एसक्यूएल इंजेक्शन हो गया एक, और दूसरा उसको बंदे को आपका पासवर्ड पता है। इनके अलावा आई थिंक बाकी जो भी हैक हो तो टाइम लगता एसक्यूएल है। इंजेक्शन भी हार्ड है। आपका एसक्यूएल इंजेक्शन वेब बेस है। अगर आप डॉकिंग यूज करो, डॉकिंग से एसक्यूएल इंजेक्शन करो जब तो इजी है। पर आप पर्टिकुलर किसी वेबसाइट या किसी ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट में या ऑर्गेनाइजेशन में एसक्यूएल इंजेक्शन फाइंड करो तो आपको बहुत टाइम लगेगा। वहाँ पे आपको पहले पैरामीटर ढूंढने पड़ेंगे। पैरामीटर भी आपके अलग अलग होते हैं। कोई होता है आपके आईडी इक्वल टू 1 वाले होते हैं, कोई आपके पीएचपी आईडी आते हैं, कोई आपके गैलरी इक्वल टू 1 आते हैं। तो हमारे कई तरह के पैरामीटर होते हैं, उन्हें फाइंड करके फिर उन पे आपको टैग करनी होती है एसक्यूएल क्वेरी। उसके बाद अगर आपको लगता है यहाँ पे एसक्यूएल है तो फिर आपको पता लगाना पड़ेगा वहाँ पे कौन सा एसक्यूएल है। मतलब एसक्यूएल के भी आपके टाइप्स होते हैं, उनमें पता लगाना पड़ेगा। फिर आपको उसे एस्पिरेट करके देखना पड़ेगा कि वो एस्पिरेट हो रहा है। अगर वो एस्पिरेट हो रहा है तो आप रिपोर्ट कर सकते हो, पर वो एस्पिरेट नहीं हो रहा, उसे रोकने के लिए सिक्योरिटी पर्पज के लिए वहाँ पे वेब लाए जाते हैं, WA करके है। तो वो आपको सिक्योर करते हैं कि आपका जो भी एक्सप्लॉइटेशन का बात है वो रुक जाए वहाँ पे। कि अगर कोई भी आपका एक्सप्लॉइट करना चाहे तो वहाँ पे आपकी आईपी जो है वो ब्लॉक हो जाती है कुछ टाइम के लिए, या परमानेंट ब्लॉक हो जाती है कुछ टाइम बाद, अगर आप ज्यादा ही उस वेबसाइट पर हंटिंग करते हो। तो एसक्यूएल इंजेक्शन में कोई छोटा मोटा बग नहीं, आपका ओएस के टॉप 10 में पहले नंबर पे बग आता सबसे है। पहले नंबर पे P1 आता बग है होता वो। है क्योंकि इंजेक्शन का। जैसे मैं अभी कल परसों किसी और से मैं ट्विटर स्पेसेस पर बात कर रहा था, उन्होंने भी यही कहा कि एसक्यूएल इंजेक्शन वही ठीक करना सबसे आसान होता है कंपेयर टू एवरीबॉडी एल्स, बट इतना इंपॉर्टेंट क्यों, क्योंकि एक बार घुस गए आप तो खत्म। मतलब यस सर। पूरा ही गेम ओवर हो जाता है सिस्टम का। मतलब आपने इतना बढ़िया दुनिया भर का खर्चा कर रखा है और आपने ये ठीक नहीं किया तो कुछ फायदा नहीं फिर उसका। उसमें आपके कहीं तरह के वो आ जाते हैं, आपकी इंफॉर्मेशन चली जाती है, आपका पूरे सर्वर की इंफॉर्मेशन आ जाती है। और कई बार क्या होता है एसक्यूएल इंजेक्शन से हम कहीं और वल्नरेबिलिटी निकाल देते हैं। रिमोट एग्जीक्यूशन की भी वहीं से वल्नरेबिलिटी निकल जाती है कहीं वेबसाइट में। उससे क्या होगा, उसके बाद जो भी सर्वर की इंफॉर्मेशन है उससे हम अपने लैपटॉप या अपने जो भी हैकिंग मशीन है उससे कंट्रोल कर सकते हैं। हाँ। तो इस वजह से एसक्यूएल आपका जो टॉप डिमांडिंग वर्क पे जाता है। अच्छा, तो थोड़ा आप
अभी आप अगर आप हमारी ऑडियंस को थोड़ा साइबर क्राइम के बारे में बता सकते हैं कि एग्जैक्टली क्या सीन है अभी साइबर क्राइम में। साइबर क्राइम का अभी जैसे लॉकडाउन में भी कई तरह के साइबर क्राइम हो रहे हैं, जैसे आपके क्रेडिट कार्ड को लेके या बैंक अकाउंट को लेके या आपके फोन कॉल्स पे आजकल ज्यादा स्पैमिंग हो रही है, मतलब स्कैम्स हो रहे हैं। चाहे आपको किसी और के नंबर से, मतलब आपके किसी भी रिलेटिव के नंबर से कॉल आता है कि हम मुझे पैसे चाहिए, आप मुझे पेटीएम कर दो या कोई भी फोन पे, तो आपके वहां पे स्कैम हो जाता है, या आपको पेटीएम के थ्रू या पेपल के थ्रू आपका स्कैम हो जाता है, या आपका फिर उसमें बैंक अकाउंट को लेके ओटीपी को लेके स्कैम हो जाता ओटीपी है, या स्कैम्स हो रहे हैं बहुत सारे। और फिर आपका क्यूआर स्कैनिंग आ जाता है, और फिर आपने सुना होगा फिशिंग टर्म, फिशिंग से भी आपके स्कैन स्पैम स्कैमिंग फिशिंग हो जाती अटैक्स है, फिशिंग अटैक्स तो बहुत कॉमन है। मेरा एक जैसे दोस्त आपके था स्पैम उसके। में डाल देते हैं। हाँ, उसका तो पिछले साल क्या हो गया था, उसका तो इंस्टाग्राम अकाउंट पे उसका इंस्टाग्राम अकाउंट कैसे ऐसे ऐसे हैक हो गया था। एंड वो हैक करने के उसके सब जितने भी फॉलोअर्स थे, फ्रेंड्स थे, उन सबको डीएम कर दिया कि देखो ये बहुत कूल पोस्ट है, चेकआउट करो लोग क्या, इंस्टाग्राम की लिंक लग गई। तो लोगों ने हम्म। क्लिक किया उस पर, इंस्टाग्राम का पेज खुल गया। लोगों ने अपना फिर डिटेल्स डाल दिए, हो गया लीक। और वो पेज वो वो बनाते भी अच्छा है ना साइबर वो। अवेयरनेस नहीं थी किसी को भी वहाँ पे, उन्होंने किसी ने भी वहाँ पे लिंक को वेरीफाई नहीं किया, लिंक क्या है क्या नहीं। हाँ। तो वहाँ पे तो मतलब एक तरीका है, आपको अवेयरनेस है इन चीजों की, तो आप लिंक को वेरीफाई कर सकते हो, मतलब कोई सा भी वेरीफाई लिंक है, जब भी आप देखो उस लिंक को एक बार कि लिंक क्या है क्या नहीं। कई बार क्या होता है, हमें लग रहा है वो वेरीफाई लिंक है, पर वो वेरीफाई लिंक नहीं होते कई बार। कई बार क्या होता है, आप facebook.com पे भी आपके कहीं आते हैं, जैसे आपका फेस का सी जो है वो सी नहीं ए होता है कई बार, पर हमें लगता है हम्म। सी है वो। तो ऐसे भी हमारे कहीं स्कैम हो जाते हैं हाँ, कि और अभी पूरा तो का एक और पूरा पेज, बहुत ही पूरा का बढ़िया, पूरा अकाउंट। मतलब फिशिंग लेवल की हद होती है। हाँ, एक अभी क्रिप्टो स्कैम हुआ, मैं पढ़ रहा था अभी लिंक्डइन पे, एक गैब्रियल फ्रीडलैंडर बोल के है। उन्होंने एक वीडियो बनाया जिसमें एक जो विक्टिम है उसके 5 बिटकॉइन चोरी हो गए। एंड सुनो वो कैसे हुए। पूरा फिशिंग था। नहीं नहीं, फिशिंग अभी वो तो, ये तो नेक्स्ट लेवल होता है। अभी देखो उन्होंने क्या किया, वो तो वेबसाइट पे अपना ब्राउजर बेस्ड वॉलेट था उनका, जो भी ऑनलाइन पोर्टल होगा, पता नहीं कौन सा नाम, नहीं पता मुझे, नहीं लूंगा मैं। ठीक है, तो उनको क्या फोन पे चाहिए था वो वॉलेट का एक्सेस, तो उन्होंने एक फोन में गूगल प्ले स्टोर में गए, वो टाइप किया नाम जो भी उनके पोर्टल का था, उन्होंने क्रिप्टो खरीद रखी थी। सबसे टॉप पे एक आया, अगेन वो काफी लेजिट लगा कि 1000+ डाउनलोड्स है इस पे, अच्छी 5 स्टार रेटिंग है। उन्होंने डाउनलोड कर लिया उसमें, उसमें लॉगिन करने का यूजर नेम पासवर्ड, और जैसे उन्होंने लॉगिन दबाया, विद इन अ फ्यू मिनट्स उनके सारे बिटकॉइन, 500 बिटकॉइन चोरी हो गए। आजकल ज्यादातर आपके जो प्ले स्टोर पे भी एप्लीकेशन आती है, वो भी हाँ कई तरह की मांग रहे हैं, जैसे अभी रिसेंटली पिंक व्हाट्सएप करके आया था। हाँ हाँ। जैसे आप डाउनलोड करोगे, लॉगिन भी नहीं करोगे आप, बस डाउनलोड करके अपने फोन में रखोगे, आपका व्हाट्सएप पूरा क्रैश, आपका फोन का पूरा डाटा आपके अटैकर के पास चला जाएगा। भाई बहुत बहुत ही भयंकर चीज थी ये तो। मतलब जो और लेवल पे, सबसे ये व्हाट्सएप का एंड लोग किसी भी को भी मासूम है, ब्लैक, उनको पता नहीं होता ना क्या चल रहा है ये, जब तक वो मालूम पड़ता कूल है। दिखने के चक्कर में होता है सारा, कि व्हाट्सएप हाँ। का, हाँ व्हाट्सएप का क्रैक वर्जन यूज करे, कोई जीबी कर रहा है, कोई एफएम कर रहा है कहीं ताकि उसके व्हाट्सएप के क्रैक वर्जन है, उन्हें वही लगा कि ये भी नया क्रैक वर्जन है, इसे ट्राई करते हैं, तो इस चक्कर में हम्म। हो गया। अब पता भी, हैक करने के बाद के सबसे डेंजर तो दिमाग हैक करना होता है। सोशल इंजीनियरिंग, सोशल। आपका ह्यूमन बीइंग। अच्छा, वैसे आपको, आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस फॉर्म ऑफ हैकिंग एनी इन द सेंस माइंड वुड बी, आपको वो ऐप याद है ब्लू व्हेल बोल के हुआ करती थी? हाँ, वो आई थिंक वन ऑफ वो बहुत आपको एट द एंड सबसे आपको डेड, सुसाइड करवा देती है। सबसे डेडली एग्जांपल है। मतलब सोचा, मतलब थ्रू आउट द गेम वो आपके स्टार्टिंग में हाथ में कोई तो नंबर लिखवा तो पूरे नस वस छिल जाता है आपके, ऐसा करते करते इवेंचुअली एंड में जाके भाई लास्ट में कि सुसाइड करना पड़ेगा आपको, कूद, सुसाइड मतलब कूद जाओ, वो ब्लू व्हेल बन गए। वो भी लोग कूल बनने करते भी के, तो, लोग मरे ना उस चक्कर में, बच्चे मर गए बहुत सारे उस चक्कर कहीं में। तो भी आपका पोकेमोन होता है जो आपको कहीं हम्म। पे भी लेके जा रहा था, वो भी आपका सोशल इंजीनियरिंग में था वहाँ हाँ, बड़ा अगेन पे। वो उससे मतलब उसमें किडनैपिंग का, हैकिंग थोड़ी थी पोकेमोन गो में। उसमें आपका जो होता किडनैपिंग का सीन था, मतलब आप बच्चों को बुलाए थे इधर से उधर, वो अपने घर पे नहीं रहते थे उस टाइम, वो पोकेमोन को पकड़ने के चक्कर में बाहर जाते थे, एक हाँ सिटी टू हाँ। दूसरी सिटी भी चले जाते, तो वहां पे सिटी किडनैपर सिटी। उनका फायदा उठा के उसका मतलब
पोकेमोन गो नहीं था, उसके लाइक में ऐप था, मुझे एप्लीकेशन का नाम याद नहीं हाँ, है। तब एक तो क्या पोकेमोन को तो इंडिया में निकला नहीं था, 2016 की बात हो गई है। मैं भी अपना सिंपल क्रैक्ड वर्जन यूज करके घर घर बैठे बैठे जॉयस्टिक वगैरह यूज करके पोकेमोन पकड़ता था, मैं निकलता भी ना घर के बाहर। तो उनका भी फोर्टनाइट डेवलपर्स ने तो बोला था कि भाई इंडिया में टाइम है आने को, क्योंकि वो पूरा वेरीफाई कर रहे थे, सेटअप कर रहे थे यहाँ पे जिम्स वगैरह। और लोगों ने चालू कर दिया यहाँ पे। अब पता नहीं कौन सा उसमें ये भी होगा ना कि लोगों ने शायद 80 ऐप डाउनलोड नहीं किया होगा। वो क्रैक वर्जन था, तो उससे वही हुआ ना कि आपके हैकर्स भी वहां पे मिल गए और आपके किडनैपर भी मिल गए, तो दोनों ने मिलके वहां पे पैसे कमाने के चक्कर में बच्चों को किडनैप करना चालू कर दिया। और आपका साइबर क्राइम का रेट भी, आपका अटैकिंग का रेट भी बढ़ करा वहां से। बाप रे, ये नहीं पता था मुझे कि भाई इससे किडनैपिंग वगैरह भी हो रही है। मतलब मैंने देखा था कि भाई लोग ऐसा बिना देखे कैमरे में फोकस से इतना कि लोग ऊपर बैल्कनी से नीचे गिर रहे हैं पोकेमॉन पकड़ते पकड़ते, ये सब हाँ सुना था ये भी मैंने। था, उससे भी मतलब आपके सुसाइड रेट हो गए या किडनैपिंग रेट हो गए, वो हाई हो रहे थे। भाई साहब, भाई बहुत डेंजर चीज हुई थी वो। तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है अभी की साइबर पे एज अ साइबर सिक्योरिटी क्राइम अभी मैं रिसर्चर? मतलब की साइबर में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस, मतलब मुझे लर्निंग पर्पस के लिए कई चीजें, मतलब हम मैम, जो वहाँ पे मैम है, जो इनकी की साइबर हर्षिता मैम है, उन्होंने कई चीजें हमें करवाई है, चाहे हमारे साइबर लॉ हो गए, डिजिटल फोरेंसिक हो गई, या हमें ये बताना कि कैसे आप रिसर्च पेपर तैयार कर सकते हो, हर एक चीज जो भी आपके इन्वेस्टिगेशन में यूज होती है, कैसे आप इन्वेस्टिगेशन कर सकते हो, कैसे आप पेपर वर्क कर सकते हो, वो साइड से मैम ने बताई है हमें कि आपको कैसे कैसे काम करना है पूरा। और फिर हमसे रिसर्च भी करवाई, जैसा पहला टास्क था हमारा पैकेट स्निपिंग पे पॉडकास्ट हो गया। और फिर एक मैंने बुक भी लिखी थी वहां पे, मतलब स्मॉल बुक जो पीडीएफ आती है हमारी, है कि व्हाट इज हैकिंग, मेरा टॉपिक था हैकिंग क्या है, वो उसके ऊपर कि हैकिंग क्या है, नीड क्यों है, और कितने टाइप्स के हैकर्स होते हैं बेसिकली, है, और आपके फिर कैसे आप उसमें जा सकते हो, कौन कौन से स्किल्स मेन है आपकी, और क्या क्या आपके सर्टिफिकेट चाहेंगे, वो सारी चीजें वहां पे आती थी हमारी। यही था हमारी उस वाली पीडीएफ में। सही है। तो आपके यहाँ कुछ ऐसे अजीब से इंसिडेंट्स हुए? आपने कोई यूनिक केसेस वगैरह सॉल्व किए वहाँ पे? नहीं अभी तो नहीं किए कोई केस वेस, पर हाँ हमारा जो एक्सपीरियंस था वो बहुत सही था, कि चाहे हमारे लर्निंग को लेके या कोई भी हमारे प्रोजेक्ट को लेके हो। अच्छा, तो बढ़िया है यार। अगर कोई स्टूडेंट है या कोई भी एनीबॉडी जो अभी अपना सब एक आईटी इंडस्ट्री में साइबर सिक्योरिटी फील्ड में घुसने वाला है, आप उसको क्या एडवाइस दोगे कि भाई कैसे शुरू करो, क्या करना चाहिए? क्योंकि तो आजकल क्या हो रहा पहले है, लोग डायरेक्टली यूट्यूब पर टाइप कर लेते हैं। और अभी काफी सारे लोगों ने तो मतलब एक अगेन रैंकिंग के थ्रू अपनी वीडियोस को टॉप पे कर देते हैं कि भाई 8 घंटे में आप पूरी साइबर सिक्योरिटी सीख जाओगे। और उसमें होता क्या है? कुछ नहीं होता उसमें, बस वही बोलते हैं कि साइबर सिक्योरिटी के अंदर कौन से टाइप के अटैक होते हैं बताना, ये टाइप के अटैक होते हैं, उसमें कोई ढंग का मतलब ऐसा नहीं होता कि है ना कुछ, देयर इज नथिंग वर्थ टेकिंग होम, मतलब कोई वैल्यूबल नहीं है उसमें। तो अगर आप बोलो किसी किसी को एडवाइस दोगे कि भाई स्टार्ट करना है, आप कैसे कर क्या बोलोगे उसको? पहले तो फोकस होना चाहिए, अच्छे से माइंडसेट होना चाहिए, हैकिंग करनी क्यों है, कि आपको अगर सोशल मीडिया हैकिंग या बैंक अकाउंट हैकिंग करनी, तो ये फील्ड वो वाली फील्ड नहीं है, इतनी जल्दी नहीं होते इसमें, कुछ भी हैक हो गया है। पहले आपका माइंडसेट होना चाहिए, फिर आपको पैशन होना चाहिए कि आपको इम्पोर्टेंट है, पढ़ना पड़ेगा इस फील्ड में आने के लिए, चाहे आप अपनी पढ़ाई छोड़ो तो वो चलेगा, पर अगर आप इस फील्ड में अगर आना चाह रहे हो, तो इसकी जो पढ़ाई है वो आपको करनी पड़ेगी, ये आपकी कभी भी बंद नहीं होने वाली, चाहे आप एट देन 20 के हो जाए या 30 के हो जाए, ये जब भी चलती जाएगी, क्यों, क्योंकि टेक्नोलॉजी डे बाय डे अपडेट हो रही है आपकी, इस वजह से। और दूसरा का जो है आपका माइंडसेट हो गया, माइंडसेट बन गया आपका, क्यों आना है, कैसे करना है, तो आप अपना सिंपल बेसिक से चालू कर सकते हो, मतलब पहले कंप्यूटर की डेफिनेशन, मतलब पहले कंप्यूटर चलाना सीख लो, लैपटॉप कैसे चलाते हो, वो सारी चीजें। उसके बाद आप ट्राई कर सकते हो, नेटवर्किंग होगी आपकी, नेटवर्किंग होगी, लाइनस कैसे यूज करते हैं, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो गई, एक कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिससे आप अपनी स्क्रिप्ट बना सकते हो ऑटोमेट। आजकल आपकी जो ऑटोमेटिक स्क्रिप्ट चल रही है पाइथन एंड गो में चल रही है, जो आपकी सबसे फास्ट लैंग्वेज है अब तक की।
उनमें चल रही है। और आपका उसके बाद फिर आप हैकिंग स्टार्ट कर सकते हैं। हैकिंग में आप क्या क्या कर सकते हो, पहले आप अपनी बेसिक टर्मिनोलॉजी कंप्लीट कर सकते हो, हैकिंग क्या होती है, हैकर के टाइप्स क्या होते हैं, हैकिंग का काम मतलब वर्क क्या होता है, वो सारी चीजें आप कंप्लीट कर सकते हो। और साइड बाय साइड आप वेब डेवलपमेंट का भी कर सकते हो कि अगर आप वेबसाइट है कोई, वेबसाइट में कैसे उसमें बैक एंड में काम हो रहा है और कैसे उसमें फ्रंट एंड में मतलब क्लाइंट साइड और सर्वर साइड कैसे उसमें काम हो रहा है, वो पूरा आपको जानना पड़ेगा। जब जाके आप कुछ अच्छा अच्छा लेवल पे जा सकते हो। और फिर आपको टूल्स यूज करने आने चाहिए, गिटहब के बारे में पता होना चाहिए, गिटहब से कैसे टूल्स मतलब वहाँ पे स्क्रिप्ट होती है बेसिकली, तो उसे कैसे आप क्लोन कर दो अपने सिस्टम में, कैसे उसे यूज कर दो, स्क्रिप्ट के वाला काम जो होता है जिसमें आपको दूसरे के टूल पे डिपेंड रहना पड़ता है पहले शुरू शुरू में। उसके बाद आप खुद के टूल्स या खुद की मैथोलॉजी बना बना के आप हंटिंग या हैकिंग स्टार्ट कर सकते हो वहाँ पे पूरा। ये रहा, ये आपका सबसे बढ़िया रोड मैप। और रिसोर्सेज के लिए सबसे बढ़िया ब्लॉग ब्लॉग हो गए, चाहे मीडियम के हो गए या ब्लॉग स्पोर्ट के हो गए, कई तरह के ब्लॉग है। यूट्यूब का कंटेंट पहले अच्छा था, पर अब जैसे यूट्यूब का एक साल में लॉकडाउन में क्या हो रहा है, ज्यादातर हैकिंग चैनल जो है उन पे स्टैक आके वो बंद हो चुके हैं। अगर आपको अब भी कई यूट्यूब हाँ, वो चैनल तो है यूट्यूब ने उड़ा दिए होंगे ना अपनी तरफ से। जैसे आपका जो रियल रियल हैकिंग वाले हैं, जैसे आपका बिटन टेक का हो गया, टैक चिप का हो गया, मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग का भी अच्छा चैनल है। ये तीन चैनल आपके सही सही है। और आपका फिर आपका ये हो गया जैज सिक्योरिटी का हो गया है, आपका जैज सिक्योरिटी हो गया। और भी कई चैनल है जो अब चल रहे हैं। अगर मैं और भी चैनल की बात करूँ, मुझे और चैनल नहीं पता वैसे यूट्यूब पे, मैं यूट्यूब पे ज्यादा हूँ भी नहीं। तो सीखने सबसे बढ़िया मीडियम, ब्लॉग ये सबसे बढ़िया। और कोई अच्छी खासी पीडीएफ है या बुक है वहां से ले लो, या फोरम हो गया आपके, अभी कई तरह के फोरम खुलेगा आपके सरफेस ऐप पे भी और डीज ऐप पे भी हैकिंग के, तो आप वहां से रिसोर्स ले सकते हो, या कोई मेंटोर हो गया आपका, उसके साथ सीख सकते हो। जैसे अभी मैंने जो सीखा था, मैं एक कम्युनिटी के साथ जुड़ा हुआ था, टीम एनम के साथ, तो मैं उनके साथ सीखते सीखते आगे बढ़ा हूँ। बढ़िया, सही है। तो अब आपने उनका आप आपने मेंटोरशिप के थ्रू सीखा। हाँ, मतलब जो मेंटोर थे वो मतलब एक टाइप से मैं बड़े भैया एक टाइप में हूँ हैं। और उनकी है, उनकी वो कम्युनिटी है जो वो अब ग्रो कर रहे हैं। सही है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि इंडिया में साइबर क्राइम का हाल क्या है, और हम कितना प्रिपेयर्ड है, और क्या हमें प्रिपेयर करना है कि नहीं, लोगों को क्या लगता है आपको? अभी हमारा मतलब जो अभी का करंटली हम ज्यादा प्रिपेयर नहीं है। मतलब अभी हमें कई सारे हैकर या कई सारे हमें साइबर इन्वेस्टिगेशन चाहिए एज अ साइबर सेल में। अभी जो हमारे साइबर सेल है, कई साइबर सेल है बहुत अच्छा वर्क करते हैं, पर कई साइबर सेल है जो वहाँ पे हमारे हैकर्स नहीं है, मतलब साइबर सिक्योरिटी एजेंट्स या जो भी हमारे वो है फर्स्ट रिस्पॉन्स वो वहाँ पे नहीं है। क्यों? क्योंकि लैक ऑफ नॉलेज की वजह से। अभी क्या है, डिमांड है इंडिया में, बहुत ज्यादा डिमांड है। मतलब अभी 2019 से लेके 2029 तक हैकिंग की इंडिया में, मतलब इंडिया के उसमें कई सारी डिमांड है। मतलब उसके बाद तो जहां तक लगता है फुलफिल हो जाएगी, पर अभी अभी तो फुलफिल नहीं है, उसके आगे का भी पता नहीं। पर अभी तक जो रिपोर्ट आई है 2029 तक की रिपोर्ट आई है, उसमें आपको कई तरह के मतलब कई तरह की जॉब आपको मिल सकती है। हर एक कंपनी में आप साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर चाहिए मेनली, हर एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में चाहिए, आपके साइबर सेल्स हो गए वहां पे चाहिए, चाहे आपकी गवर्नमेंट है या आप खुद का बिजनेस चालू कर दो वहां पे भी चाहिए। क्यों? आप कोई एज अ पेन टेस्टिंग रखोगे, चाहे आपका पेपैल है, पेपैल में भी क्या होता है, वो क्या करता है, एक बर्गंटिंग प्लेटफॉर्म है, हैकर बन गया है, वर्क पे अपना वेबसाइट देते हैं, उस पर वो सारी चीजें अपनी देते हैं। जैसे वर्क क्राउड हो गया या हैकर बन पे, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपको सिंपल वेबसाइट मिलती है, आप यहाँ से टारगेट उठा के उन पे हंटिंग करते हो। तो जैसे आपको हंट हम्म। मिलता है, मतलब कोई वल्नरेबिलिटी मिलती है अच्छी खासी, आप रिपोर्ट करोगे, तो जो कंपनी है जैसे पेपल हो गई या कोई भी हो गई, वो आपको रिवॉर्ड करेगी या कुछ बोनटी देगी, मतलब कुछ मनी देगी हाँ आपके हाँ। काम के लिए। तो वैसे आपको बहुत सही है, मतलब आपके 1 मिलियन के अराउंड आपको इंडिया में चाहिए चाहिए। क्या 1 मिलियन हैकर्स चाहिए? हाँ, 1 मिलियन के अराउंड, मतलब इतना तो चाहिए कि इंडिया की पॉपुलेशन बहुत है। पॉपुलेशन ज्यादा मतलब है, एंड 1 मिलियन। आई थिंक ये अचीवेबल नंबर है कंपेयर टू, जैसे हम लोग बोलते हैं कि भाई अगर कोई इंजीनियरिंग में घुस रहा है, तो इन रियलिटी सिर्फ 50,000 अच्छे अच्छे कॉलेजेस है, मैक्स टू मैक्स 1 लाख।
यहाँ पे सोच के 10 लाख फिर भी डिसेंट नंबर है, मतलब आई थिंक इट्स गुड। यहाँ पे कंपटीशन कितना है, आपको क्या लगता है? कॉम्पिटिशन है, मतलब आधे से ज्यादा बंदे जो है इस फील्ड में आते हैं आपकी मूवी को लेके। या तो आपकी मूवी हैकिंग होती है, जो भी आपकी जो मूवीज में दिखाए जाते हैं बॉलीवुड हम्म। में या हॉलीवुड में है, उन्हें देख के हैकिंग में आते हैं। या आपको किसी भी मतलब पर्सन का अकाउंट हैक करना है या बैंक अकाउंट हैक करना है, मतलब इनलीगल थिंग या जो मतलब नॉन स्टूपिड थिंग है, उनमें लेके आए हैकिंग में आते हैं। तो इस वजह से वो ज्यादा इंस्टीट्यूट है, मतलब इंडिया में रेगुलर हर साल 1 लाख के अराउंड बच्चे निकलते हैं हैकिंग का करके। पर वो एट देन हार के दूसरी जॉब कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें तो सीखना तो वो सीखते नहीं है, वो वेट कर रहे होते हैं कब हम सोशल मीडिया हैकिंग करेंगे या कब हम बैंक अकाउंट हैक करेंगे, वो सारी चीजें। तो हाँ, तो इस ये वजह बहुत से लोगों को फनी लगता है। मतलब लोग बोलते हैं कि भाई इंस्टाग्राम हैक करना मतलब फेसबुक गधा बैठा है क्या, इतना करोड़ों खर्च करते हैं लोग अपने हैकर्स पे। गूगल गूगल बेवकूफ है क्या, इतने सारे रुपए खर्च करते, डॉलर्स खर्च करते हैं, इतनी हायरिंग करते हैं, सिस्टम लगाते हैं, और तुम लोग बोल रहे हो कि तुम लोग ऐसे तुम कोई 2 कौड़ी का कंप्यूटर लेके फोड़ दोगे क्या सिस्टम? मजाक हो रहा है क्या? और कईयों को ये लगता है कि आपके पास अच्छा खासा लैपटॉप है और स्किल्स जीरो है तो आप हैकिंग कर सकते हो। नहीं, आपके पास मेन स्किल्स है, स्किल्स होनी चाहिए। अभी रिसेंटली क्या हुआ था, कराची का एक बंदा था, तो वो मतलब एक व्हाट्सएप ग्रुप था, तो उसमें कहता है कि मुझे ये हैक करना है, मेरे पे अच्छे खासे लैपटॉप है, मैं लेने जा रहा हूँ है, और उस पे स्किल्स जीरो थी। तो वही चीज है, मतलब वहीं से माइंड डिस्ट्रैक्ट हुआ कि आपको हैकिंग के लिए स्किल्स चाहिए, लैपटॉप नहीं चाहिए इतना। क्या आपको कोई भी काम करना है, आपको एंड्रॉइड पेन टेस्टिंग करनी है, वेबसाइट बनानी है, आपको एंड्रॉइड डेवलपमेंट करनी है, कोई भी चीज करनी है, स्किल्स मैंने स्किल के बाद आपको लैपटॉप की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। पहले स्किल तो कर लो, वो है ना कि पहले पहले तुम सीखो। वो जैसे स्पोर्ट्स में करते हैं ना हम लोग, कोई जैसे कोई क्रिकेट ज्वाइन करने वाला है, क्रिकेट क्लास वगैरह, फुटबॉल, भाई पहले खेलना तो सीखो, फिर अपना किट वेट का सोचना आप लोग। मेरे पे खुद लैपटॉप नहीं था, मेरे पे मतलब लास्ट ईयर आया, 2020 में मेरे पे लैपटॉप आया है। और 2020 में ये हुआ, मतलब लॉकडाउन के अंदर अंदर मेरे पे 2 लैपटॉप लेने पड़े मुझे। 2 लैपटॉप? हाँ, मतलब पहले वाला जो लैपटॉप था मैंने सेकंड हैंड लिया था, वो रिक्वेस्टर था, उसमें थोड़ा सा दिक्कत आ रही थी, प्रॉब्लम, वो मैं बेचने वाला था। मैं नया लिया आया था इतने, और जो जिसे अच्छा। बेचने वाला था उसने एकदम मना कर दिया। उसके बाद मेरा लैपटॉप ये सही चलने लग गया, तो फिर मैंने बेचा नहीं। तो इस वजह से मतलब वो थोड़ा सा मेरे लिए सही है। वो तक मतलब थोड़ा सा मुझे भी लॉस हुआ पैसों का। पर हाँ, अब एट द एंड मेरे पे 2 लैपटॉप है। अब अच्छा है, आपको दोनों, आप दोनों पे काम कर सकते हो। अब एक पे कॉलेज का होता है, एक पे हैकिंग का होता है। बढ़िया है। तो जस्ट वन लास्ट क्वेश्चन एंड आई थिंक विल रैप दिस अप, काफी टाइम हो गया है। ठीक है, तो चेतन, अगर आप इफ यू वर टू, अगर आप वापस 12-13 साल की उम्र में जाओगे, आप अपने आप को क्या बोलोगे कि भाई क्या करूँ? मैं खुद कंफ्यूज हो जाऊंगा कि करूँ क्या, क्योंकि अगर मैं इस पैंडमिक को देखते हुए बोलूँ तो जॉब तो है नहीं बिल्कुल मार्केट में। तो एज अ फ्रीलांसर कोई ना कोई स्किल डेवलप करना चाहूंगा मैं, चाहे आपकी वेबसाइट बनाने की हो गई हो, चाहे आपका साइबर सिक्योरिटी को रिलेटेड हो, क्योंकि क्या आजकल मोस्ट डिमांडिंग जो आप जॉब जो आपकी ब्लॉकचेन में, साइबर सिक्योरिटी में, और आपकी एज अ पेन टेस्टिंग, इन सारी फील्ड में सबसे ज्यादा आपकी डिमांड है। चाहे आपकी डिजिटल मार्केटिंग हो गई, सोशल मीडिया मार्केटिंग हो गई, जी। एसईओ हो गई, इनमें आपकी सबसे ज्यादा मार्केटिंग है। मतलब आप इसमें रहोगे तो आप फ्रीलांसर एज अ अच्छे खासे पैसे भी कमा सकते हो और सामने वाले की अच्छे खासी हेल्प भी कर सकते हो। सही है, एसईओ की डिमांड है इतनी इंडिया में? हाँ, एसईओ की आपकी डिमांड बहुत है। बता, मैं तो भाई पर्सनली मैं एसईओ में इतना कभी करूंगा नहीं। क्यों? क्योंकि एसईओ में क्या होता है कि अगर बहुत बहुत महंगा पड़ता है, उससे अच्छा कुछ खुद से कुछ ऑर्गेनिकली ग्रोथ कर लो कोई एक प्लेटफॉर्म पे, अगर कुछ भी बढ़ाना है नहीं, तुम्हें। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। उसमें एसईओ में गए सिंपल सर्च इंजन ऑटोमेशन है वो, उसमें क्या आपको रैंकिंग चाहिए होती है गूगल पे। हम्म। मैंने खुद एसईओ का मतलब मैं पढ़ रहा था पर मैं पूरा नहीं पढ़ पाया था। तो उसमें सिंपल आपको रैंकिंग लानी होती है, आपका जो भी आपका कीवर्ड है या आपकी, मैं हाँ अपनी हाँ, बात तो करूँ मैंने मैंने कभी अपनी मेरी मॉम की वेबसाइट के लिए लास्ट 2020 में ट्राई किया था। अगर उसमें दिक्कत तो बस कुछ नहीं, वो बस स्पीड देखता है। गूगल का क्या सिस्टम है कि अगर 3 सेकंड के अंदर आपका वेबसाइट लोड हो रही है तो ज्यादा रैंक मिल जाती है उसको। तो हाँ, बस वही अब क्राइटेरिया मैं होता है, आई थिंक मेजर बेसिक। वो एक बेसिक क्राइटेरिया मुझे लगता है।
वही एक है। मतलब उसमें ऐसा कुछ नहीं। अगर मैं अपनी बात कहूँ, मैंने रैंकिंग, हाँ मुझे थोड़ा टाइम लगा था रैंकिंग लाने में। अगर आज भी मैं अपना कीवर्ड जो मतलब सीवी खाली करके अगर मैं गूगल करूंगा, तो मतलब मैं ज्यादातर इंफॉर्मेशन आ रहेगी। मेरा ब्लॉग आ रहेगा, मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट आ रहेगा। मैं बग बग का पे तो हूँ नहीं मैं। मतलब जो इतने जहाँ जहाँ मेरे अकाउंट बने गए, इंस्टाग्राम का अकाउंट बना हुआ है वो आ जाएगा मेरा, ब्लॉग आ हम्म। जाएगा, एक 10 साइबर एजेंट का अकाउंट बना हुआ है वो आ जाएगा। तो ज्यादातर चीजें मेरे बारे में पता चल जाएगी। तो मैंने रैंकिंग ला रखा हूँ, तो इससे तो हम मुश्किल नहीं है, पर हाँ उसमें टाइम लगता है बहुत। एसईओ में हो गया आपका, डिजिटल मार्केटिंग हो गया, इन सब में टाइम लगता है बहुत ज्यादा। अच्छा, तो चलिए सही है, आज का एपिसोड ये खत्म करते हैं। थैंक यू चेतन, गेस्ट बनने के लिए। मुझे आपका बहुत अच्छा लगा। मैंने काफी सारा एक्सपीरियंस गेन कर लिया। आई लर्न अबाउट अ लॉट ऑफ न्यू थिंग्स वरना जो मैं कभी समझ नहीं पाता। सो थैंक यू वेरी मच चेतन। कूल।